Hello my dear friends, so today we are going to solve the problem number 944. So what is the question? Delete columns to make sorted. Okay, so what is given? You are given an array n which contain string. Okay, so we can see here strings are there, ABC, BCE, CAE and all are of the same length. The strings can be arranged such that one on each other make a grid. Okay, they are arranged like this and the grid is formed. For example, this can be arranged like this. Okay, now what we need to do, you want to delete the column that are not sorted lexicographically. So what is lexicographically sorted means? Sorted in dictionary order. Sorry, in the above example, column 0, so column 0 will contain this is ABC. If we see the column 0, so we have A, B, C and they are in the dictionary order. If we see this C, E, E, they are also in dictionary order. But if you see the middle one B, C, A, they are not in dictionary order, because in dictionary first B come then C come. But here they have given the order like this: B, C. Okay, B, C is correct, but they have given A. So this is not the correct order. Correct order is A, then B, then C. Okay, so what we need to do? We need to remove this. So what we need to do? In output we need to return 1. So how many things we need to remove? Only one thing we need to remove. If they have given A and B like this, okay, first element is A and second element is B. So they are arranged like this and they are in lexicographical order. So what we need to do? We need to return in output 0. If we take this example, third example, okay, so here they have written Z, Y and X, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R. Now we need to check like this. Are they in the dictionary order? So first Z, W, T are in dictionary order? No. Okay, it should be like this, starting from minimum to go to maximum. They are also not in dictionary order because Y is the top element, X and here they are also not in a dictionary order. So we can return 3 because we need to delete all the 3 columns to make it lexicographically. So I hope the question is clear to you. Okay, so let us discuss the approach now. Okay, if you want I can explain the question in Hindi as well. So हमें क्या पता करना है? हमें एक स्टार्स एरे गिवन होगा जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे. हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि वो डिक्शनरी ऑर्डर में है या नहीं है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे? हमें ट्रैवर्स करना है कॉलम वाइज. ठीक है, तो हमें पहले फॉर लूप चाहिए होगी ट्रैवर्स करने के लिए. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं कि भाई कितने कॉलम्स है और कितने रोज है. तो R इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टार्स. सो इस केस में रो कितने हैं हमारे पास? 3 है, मतलब लेंथ ऑफ स्टार्स मीन्स यहाँ पर कितने एलिमेंट है. ठीक है, और कॉलम क्या हो जाएगा? इसकी कितनी लेंथ है? सो लेंथ ऑफ स्टार्स ऑफ 0. इस केस में हमारे पास कॉलम्स भी क्या है? 3 है. ठीक है, अब हमारे पास रोज आ गए, कॉलम्स आ गए, अब हमें ट्रैवर्स करना है. ठीक है, तो हम एक क्या ले लेते हैं? वाइल लूप ले लेते हैं. सो वाइल, और 2 एलिमेंट ले लेते हैं I और J जिनकी इनिशियली वैल्यू क्या है? 0. सो वाइल I इज लेस देन नंबर ऑफ रोज एंड J इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, वाइल लूप का यूज करेंगे ट्रैवर्स करने के लिए. अब हमें क्या करना है? हम चेक करेंगे. ठीक है, तो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को कंपेयर करना है. तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ये एलिमेंट हो जाएगा STRS ऑफ I की वैल्यू इनिशियली 0 है और J भी क्या है? इनिशियली 0. ठीक है, अगर ये एलिमेंट सपोज ये बड़ा आ जाए किससे? STRS ऑफ I प्लस 1 J. ठीक है, I+1 मतलब इस एलिमेंट में आ गए और J सेम है हमारा.
अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा आ जाए तो उस केस में क्या करना है हमें, उस केस में हमें जो हमारा आंसर होगा, आंसर हम एक वेरिएबल बना देते हैं, उसका काउंट इंक्रीज कर देंगे सबसे पहले, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ZYX है, तो ये बड़ा आ गया, तो अब इसका मतलब ये पूरी कॉलम क्या करनी पड़ेगी, डिलीट करनी पड़ेगी। तो अब बाकी के एलिमेंट्स चेक करने का कोई सेंस भी नहीं होता है, बस हमने आंसर इंक्रीज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारा आंसर कॉलम भी इंक्रीज कर, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम पे आने के लिए हम क्या करेंगे, J प्लस इक्वल्स टू 1, और हम फर्स्ट एलिमेंट में आ जाएंगे, तो I की वैल्यू हम क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये एलिमेंट बड़ा हो सकता है या एलिमेंट छोटा हो सकता है। तो अगर वो एलिमेंट छोटा है, जैसा कि हमारा इस केस में है A और F, तो इस केस में क्या करना है, हमें इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करना है। पहले हम क्या करेंगे, टॉप के दो एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इसका मतलब हमने क्या किया, सिर्फ I को इंक्रीज कर दिया, सो I प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर पहुंच गए, अब क्या हुआ, कंपैरिजन खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा कंपैरिजन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट कॉलम है तो हम नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। सपोज यहां पर तुमने कंपेयर किया पहले, फिर यहां कंपेयर किया, फिर कंपैरिजन खत्म हो गया, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में आना है। तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ हम I जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए जो हमारे रोज है उनसे ज्यादा, रोज -1। ठीक है, अगर वो इस एलिमेंट में पहुंच गया, ठीक है, या इसके भी कहीं आगे आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट कर देना है किसको, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। तो कॉलम क्या हो जाएगा, J प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे और I को भी क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। बस इतना सा करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक बार मैं इस आंसर को चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने निकाला कितने रोज है कितने कॉलम्स है, फिर हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया। हमने बोला कि अगर नीचे वाला एलिमेंट बड़ा है तो तुम आंसर को 1 से इंक्रीज कर दो, फर्स्ट रो में आ जाओ वापस से और कॉलम नेक्स्ट कर दो, एंड देन कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हमें बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। एल्स हमने क्या किया, एल्स हमने I को इंक्रीज कर दिया, मतलब हमने क्या किया था, नेक्स्ट दो एलिमेंट को चेक करा, पहले शुरुआत के दो एलिमेंट को चेक किया, फिर लास्ट के दो एलिमेंट को चेक किया। ठीक है, और अगर वो लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाता है तो हमारा टास्क क्या रहेगा कि हम I को टॉप में ले जाएं और कॉलम नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए, और जब ये फॉर लूप फिनिश हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर एंड ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। सो अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।